Hi everyone. My first question to all of you is like, what do you think is trading psychology? It's a very new term, it's a very unique word. So, you have been in the path of becoming traders. So, what according to you is trading psychology? It's the heart of trading, that's true, to do according to our own rule. That's just a part of it. There's a lot of things in trading psychology. This is just a part of it. Mindset which should be kept while trading to act in rational, unbiased manner. That's a very beautiful way of presenting it. So today we're going to discuss about everything that is in trading psychology. I'm going to give you a generalized view about what this thing is about. It is a very complex topic, no doubt about it. But I will try to explain you at least the basics, like Paras sir explained you all the basics about the charts and how to read the market, right? Similarly, I'll try to explain you all the basics of the psychology so that whenever you are coming across those situations, it'll be easier for you to deal with them. Let's start with the first question, that do you really think trading is all about the technicals and fundamental analysis and nothing else? You have gone through the technicals and the fundamentals with Paras sir. Do you really think that's the only thing and nothing else that's required in trading? So most of you know about this. Paras sir, during his sessions, he told you that fundamentals might tell you what to trade, right? And technicals might tell you when to trade. But the most important thing, once you have learned the technicals and the fundamentals, is trading psychology, because that is something that will tell you how you will trade. What and when is something that we have already discussed. Now we're going to discuss how you will trade, whether you will be profitable or not. Because rules are the same. Everyone has understood the rules. There are a lot of setups that you can come across in your journey. If we explain the same setup to 10 people, out of those 10 people, not everyone will be profitable. The only difference in that is because of trading psychology. So, how you will trade is something that will be decided by trading psychology itself. So, it's very important for us to understand this, what it exactly is, and how we can actually control our emotions, our psychology, our mindset to trade in the most profitable manner and to make most out of this trading journey. So as someone already pointed out, that technicals and fundamentals only contribute 5% of the success in trading. 95% constitutes of your trading psychology, the discipline, and the risk management. These are all the three most important part of trading. You might know the technicals. I'm not saying technicals and fundamentals are not important. Obviously, they are the first step towards this passage. But once you learn them, the other steps are much more important, and they are the one which will decide whether you will be profitable or not. It's said that 90% traders lose in the market. The only reason for that is because they are not concentrating on this segment, that is psychology, the discipline, and the risk management. So, what is trading psychology from a very literal way? It refers to the emotions and the mental state of the traders and the market that helps to dictate success और फेलियर इन ट्रेडिंग. आपके जो इमोशंस हैं वो आपको क्या डिसीजन लेने पे मजबूर कर रहे हैं, जो आपका मेंटल स्टेट है. कई लोग होते हैं, दे आर हैविंग सम फैमिली इश्यूज एंड दे जस्ट सिट ऑन द ट्रेडिंग एंड दे आर नॉट एबल टू present themselves well because their mental state is not in the right state to actually trade at that moment. There is a lot of concentration that you require while trading. आप किसी भी मोड में, किसी भी स्टेट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इन दैट जोन टू एक्चुअली बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमें यही सब चीज़ें बताता है एंड हमें वो सोल्यूशंस देता है ताकि हम उस साइकिल में ना फंस सकें जिसमें वो 90% लूजिंग ट्रेडर्स बैठे हैं ऑलरेडी. Okay, so these are some of the main emotions that we have to control while trading. सबने इन इमोशंस के बारे में सुना होगा, दैट इज ग्रीड, फियर, होप, ईगो, फोमो. फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट. अगर आप लोगों ने यूट्यूब वीडियो देखी है तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस. एंड रिग्रेट एंड एडमिरेशन, ये बहुत कॉमन इमोशंस हैं. बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है हमें ये समझना कि ट्रेडिंग की जर्नी में इन इमोशन से हमें क्या फ़र्क पड़ता है. ग्रीड सबको पता है, ट्रेडिंग में ग्रीड होता है, फेयर होता है, होप होता है, लेकिन उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और उससे कैसे डिसाइड होता है हम लॉसेस करेंगे या प्रॉफिट्स करेंगे, हमें वो जानना ज़रूरी है. इनमें से कौन से इमोशंस हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो समझना ज़रूरी है. एंड इनके इफ़ेक्ट से क्या फ़र्क पड़ सकता है हमारी ट्रेडिंग पे, हमें वो चीज़ें समझनी ज़रूरी है. सिर्फ इमोशंस को समझना नहीं, उनके आगे पीछे सब कुछ समझना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे. FOMO, we'll be talking about all these emotions in detail.
डोंट वरी अबाउट दैट. आई एम जस्ट गिविंग यू नेम्स राइट नाउ. मैं अभी आपको सारे इमोशंस को एक एक करके विद सिचुएशंस जो ट्रेडिंग की जर्नी में आपके साथ में आते हैं उनको भी डिस्कस करते हुए मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ. ओके, सो डोंट वरी. I'll just explain you exactly FOMO क्या होता है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है. The first and the foremost emotion that I would like to discuss is fear. What do you think about fear? क्या होता है fear? So if we talk about literally, fear is a natural emotional reaction to a perceived threat. Psychologically, humans are designed to combat fear by fight or flight. किसी ने इस concept के बारे में सुना है कभी fight and flight? So साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें, फियर एक बहुत कॉमन इमोशन है एंड एवरी वन ऑफ अस फील दिस इमोशन इन एवरी सेगमेंट ऑफ आवर लाइफ, राइट. सो फियर में क्या होता है, हम दो ही चीज़ें कर पाते हैं. वन इज़ फाइट, या तो हम उस सिचुएशन से लड़ेंगे, या फ्लाइट, या हम उस सिचुएशन से भाग जाएंगे. जब भी हमें कोई फेयरफुल सिचुएशन मिलती है, हमारा ब्रेन सिर्फ यही दो चीज़ें कर पाता है. या तो उसे ये लगता है दैट आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्चुअली फाइट दिस सिचुएशन, या फिर उसे ये लगता है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ और मुझे इस सिचुएशन से भाग जाना चाहिए क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा इस सिचुएशन, राइट. सो दैट्स द साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ इट. एंड अगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मोस्ट ट्रेडर्स ऑप्ट फॉर द फ्लाइट ऑप्शन. जब भी हमें डर लगता है हम लिक्विडेट कर देते हैं, हम रिडीम कर देते हैं, हम उस चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट. लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, दे बिलीव इन द सेटअप. उन्हें अपने स्किल्स पे कॉन्फिडेंस है, अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस है, अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस है, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो उस सिचुएशन में फाइट करते हैं, ना कि फ्लाइट करते. दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ नोवाइज ट्रेडर एंड अ प्रोफेशनल ट्रेडर. वो फाइट और फ्लाइट का ही कॉन्फ्लिक्ट है जो एक्चुअली आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है. So let's take one scenario. With every emotion, I'll be discussing one scenario so that it's easier for you to relate to your trading experiences. Okay? So when trader experience anything against their analysis, they naturally get scared. ये natural human emotion है, इसमें कुछ special नहीं है और इससे हमें लड़ना भी नहीं है. ये natural है. जब भी हमारे against कुछ भी हो रहा होगा, अगर आपने long position ली है और market नीचे जा रही होगी, तो आपका fear emotion trigger होगा ही होगा. You don't have to fight from that. वो इमोशन ट्रिगर होगा, लेकिन उसके बाद आप एक्शन क्या लेते हो वो इम्पोर्टेंट है. सो ट्रेडर्स मोस्टली ओवर रिएक्ट एंड फील कंपेल्ड टू कट. देयर आर 3 सिचुएशंस दैट कैन हैपन. दे कैन कट द विनिंग पोजीशन. कोई ऑलरेडी लॉन्ग ले रहा है और उसकी विनिंग पोजीशन है और एकदम से मार्केट नीचे आने लग गई, आपके टारगेट से 50% तक पहुंच गई. मानते हैं कि 50% तक टारगेट पहुंच गई और उसके बाद रेड कैंडल्स बनना शुरू हो गई, तो आपको ये डर लगेगा कि मेरे घी प्रॉफिट भी ना चले जाए और आप उस विनिंग पोजीशन को वहीं के वहीं कट कर दोगे. एंड एक्चुअली दैट जस्ट अ स्मॉल रिट्रेसमेंट और प्राइस वापस ऊपर चला जाता है. Secondly, hanging on to the losing trade. There are a lot of people who have a fear of accepting the loss. जब मार्केट नीचे जा रही है, आपका स्टॉप लॉस भी क्रॉस कर चुकी है, आप फिर भी उस ट्रेड को हैंग ऑन करते हो बिकॉज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको डर है उस लॉस को एक्सेप्ट करने का, तो इसलिए आप उस ट्रेड को हैंग ऑन करते हो उस फियर इमोशन की वजह से. बट एक्चुअली आपका सिस्टम वो नहीं कह रहा होता. आपका सिस्टम कह रहा होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप उस ट्रेड को बंद कर दोगे, लेकिन आप फिर भी उसे हैंग ऑन करते हो. सेकेंड, हेजिटेटिंग टू टेक द ट्रेड्स. जब आप नई ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, सो दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ नोवाइज ट्रेडर्स फील इज लाइक, जब भी वो उन्हें कोई सेटअप दिखता है उन्हें हेजिटेशन होती है कि उन्हें डर लगता है हमें अभी पूरा नहीं आता, हमें कम्प्लीटली नहीं समझ आता, इसलिए हो सकता है कि हम गलत हों और हम ट्रेड ही ना करें. सो दीज आर द ट्रेडर्स, जो नोवाइज ट्रेडर्स के साथ बहुत सारा होता है, दैट दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस इन देयरसेल्व्स और इन द ट्रेड एंड दे ट्राई टू फ्लाइट फ्रॉम दैट सिचुएशन इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द ट्रेड एंड प्रैक्टिसिंग दैट ट्रेड इंस्टेड. I'll be giving suggestions at the end of the slides. First, let me explain you all the emotions. Okay, so let's go to the another emotion. That is greed. एक बहुत ही पॉपुलर वॉल स्ट्रीट की सेइंग है दैट पिग्स गेट स्लॉटर्ड. ट्रेडिंग एक ग्रीड के इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट करी हुई है, एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट इज़ रॉन्ग बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज़ प्रिवलेंट इन दिस मार्केट. ग्रीड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इन्फ्लुएंशियल इमोशन वाइल ट्रेडिंग. बिकॉज सिंपल सी बात है, आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? आप ट्रेडिंग कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट? लेकिन कौन डिसाइड करेगा कि कितना प्रॉफिट सही है और कितना प्रॉफिट ज़्यादा है? ग्रीड मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, राइट? इट इज़ अ डिसअप्रोप्रिएट डिज़ायर फॉर मोर प्रॉफिट्स.
तो अगर ज़्यादा प्रॉफिट कोई डिफाइन कर रहा है तो किसी इंसान को कैसे समझ आएगा कितना प्रॉफिट सही है और कितना ज़्यादा है? तो इसलिए ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ग्रीड हमेशा रहेगा ही रहेगा, बिकॉज इट इज़ यू हु इज़ डिसाइडिंग कितना प्रॉफिट सही है और कितना प्रॉफिट ज़्यादा है, और वो ग्रीड बन गया। ये हमेशा इम्बैलेंस रहेगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बैलेंस दिस थिंग, टू एक्चुअली रियलाइज इट कि कितना प्रॉफिट सही प्रॉफिट है जो ट्रेडर को बनाना चाहिए और कितना प्रॉफिट एक ग्रीडी गैमलर की तरह आप सोच के बना रहे हो, बिकॉज ग्रीड इज़ ऑल अबाउट गैमलिंग। आपने कई बार सुना होगा ट्रेडिंग को बहुत लोग गैमलिंग कहते हैं, बिकॉज इट इज़ ट्रू, इफ़ यू आर डूइंग ट्रेडिंग विदाउट द टेक्निकल्स, विदाउट द अप्रोप्रिएट सेटअप्स, विदाउट द रूल्स, विदाउट द रिस्क मैनेजमेंट, अगर इन सब चीज़ों की बगैर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो गैमलिंग ही है, बिकॉज उसके अंदर ये सारे इमोशंस कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। इट इज़ योर सेटअप, इट इज़ योर ट्रेडिंग प्लान दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू कंट्रोल दीज इमोशंस, राइट? So let's take a scenario. Greed emotion can force traders to hang on to a winning position. आपने लॉन्ग पोजीशन ली एंड आप अच्छा खासा टारगेट के पास पहुंच गए हो, लेकिन अभी भी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, सो यू विल जस्ट हैंग ऑन टू इट दैट इसमें से मैं और प्रॉफिट निकाल सकता हूँ और मुझे प्रॉफिट हो सकता है, और थोड़े से पॉइंट्स और ग्रैब कर लेता हूँ, थोड़े से पिप्स और बढ़ने देता हूँ, जब तक ग्रीन कैंडल आ रही है तब तक कर सकता हूँ। लेकिन इफ़ यू गाइज हैव सीन गोल्ड का चार्ट, यू हैव बीन सीइंग फॉरेक्स, राइट? आप लोगों ने गोल्ड का चार्ट देखा है, तो गोल्ड हैज़ द टेंडेंसी टू एक्चुअली रिवर्स विद इन सेकेंड्स। तो आप उस ट्रेड को होल्ड ऑन तो कर लेंगे इस उम्मीद में कि अभी भी ग्रीन कैंडल बन रही है एंड आई शुड मूव ऑन, बट वो आपके सेकेंड्स में आपका सारा पोजीशन नेगेटिव में भी कर सकता है। इट हैज़ दैट कैलिबर, बिकॉज वोलैटिलिटी फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। सो एज अ ग्रीडी ट्रेडर यू मे हैंग ऑन टू दैट विनिंग पोजीशन कि थोड़ा सा और प्रॉफिट कमा लिया जाए, बट दिस इज नॉट हाउ इट इज़ डन प्रोफेशनली आपको पहले ही डिसाइड करना है आपका क्या प्रॉफिट है और आपको वहीं से निकालना है। आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है इमोशन? Like you guys have started doing demo trading now. So has any one of you experienced this during your journey, and how exactly did you react to it? Did you hold on to that position, or you were disciplined enough to actually get out of that trade at your target price itself? It's very important to actually sticking to your rules. It's very difficult. I will agree it's very difficult, but it's okay to trail the stop loss. Trailing stop loss is a very nice concept and it's part of the setups itself. Trading stop loss is a very, like I as a trading psychologist also recommend this to my clients, because trading stop loss actually helps you control a lot of your emotions, because you know that's the limit that you can cut to. But it is very important to have a trailing stop loss with the setup, with the proper rules, and not just because you're thinking that is the right place to put the stop loss. It is important to put the stop losses based on some technical knowledge, like sir has taught you about the market structure, so maybe trailing stop loss can be set on the market structures. So it's very important for you to actually use the trailing stop loss, but use it in proper rules. Okay, the next emotion is hope. As I was talking about trading, gambling hoti hai, this is the same thing. The only thing that separates trading from gambling is mindless hope. अगर आपने किसी कसिनो में किसी पोकर प्लेयर को खेलते हुए देखा है या ब्लैक जैक खेलते हुए देखा है, the only emotion that they have is hope that next card मेरे मतलब का ही आएगा। बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं करना होता। ट्रेडिंग इज अ रूल बेस्ड सेटअप, इट इज नॉट गैमलिंग। अगर रूल्स से करा जाए तो, वरना इट इज गैमलिंग। So hope, what is hope according to the literal definition? It is a feeling of expectation and desire for a particular thing to happen. हमें वो एक्सपेक्टेशन है कि यही चीज़ होनी चाहिए, वो डिज़ायर है कि यही होगा मार्केट में और कुछ नहीं हो सकता, बट दैट्स नॉट ट्रू। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ उस पोजीशन पे रहना है कि या तो मैं सही भी हो सकता हूँ या मैं गलत भी हो सकता हूँ। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग, यू कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम। होप इज़ अ वेरी पॉजिटिव इमोशन, but in trading, when it is not embedded in the logic, the rules, the setups, it can actually lead to heavy losses. And trust me, there are a lot of people who have actually gone through these losses. As it is very evident, the scenario is hope of recovery prevents the traders from cutting their losses. आपको रिकवरी का होप होता है कि शायद मार्केट से रिकवर हो जाएगा, अभी छोटा सा स्विंग बना है, थोड़ा और उल्टा जाएगा, अभी रिवर्स होएगा और मेरे सारे लॉसेस, इस होप में कि मार्केट ये अब कर लेगी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु होल्ड ऑन टू देयर ट्रेड्स
and they don't cut their losses. Okay, you blew your crypto account once because of hope. That's very true, and the same thing can happen. See, any market that's very volatile, I always say stock market is still better in these terms, but any market that is very volatile like forex or crypto, they can actually blow up all your amounts if you trade on any of these emotions. Even a single emotion, if it's present in your trading, it will blow up your account and you won't even understand it. That is why we always recommend all our students to actually trade in a demo account, because demo account में आपको ट्रेड करके पता चलता है आपके क्या क्या इमोशंस हैं और आपको क्या क्या क्लाउड कर रहे हैं, आपके क्या क्या डिसीजंस पे फर्क डाल रहे हैं, और तब आपको समझ आता है रियल मार्केट में क्या करना है क्या नहीं करना. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इमोशन, दैट्स रिग्रेट. Regret is an emotion which can come both ways. That is, a trader could regret placing a trade or regret not placing one. Regret दोनों टाइप का हो सकता है. कभी आपको इस चीज़ का रिग्रेट भी हो सकता है कि मैंने क्यों ले लिया था ये ट्रेड. आपको इस चीज़ का भी रिग्रेट हो सकता है कि मैंने ये ट्रेड क्यों नहीं लिया था. सो द सिनेरियो दैट वी कैन से इज, व्हाट इफ आई वुड हैव प्लेस्ड द ट्रेड. मतलब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है अगर कभी भी ट्रेडिंग करते में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि रिग्रेट इमोशन है जो आपके दिमाग में चल रहा है, जिसकी वजह से आप ये सवाल अपने आप से पूछ रहे हो, व्हाट इफ आई वुड हैव प्लेस्ड अ ट्रेड, आई मिस्ड गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मुझे ये ट्रेड प्लेस कर लेना चाहिए था. तो जब मुझे पता था ये होने वाला है तो मैंने ये कैसे नहीं किया. या ये भी हो सकता है मुझे पता था ये होने वाला है तो मैंने ये कैसे कर दिया. मुझे लग रहा था मार्केट नीचे जाएगी लेकिन मेरे को एक सिग्नल दिखा कि ऊपर जाएगी और मैंने ट्रेड ले लिया. व्हेनेवर आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये एसोसिएशंस आ रहा है, आपको समझना ज़रूरी है कि ये एक रिग्रेट इमोशन है. सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ टू एक्चुअली रिकॉग्नाइज दीज इमोशंस. आप जितनी जल्दी इन इमोशंस को अपनी ट्रेडिंग के सेटअप में रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपके साथ हो रहे हैं या आपको आपके दिमाग में ये इमोशंस आ रहे हैं, उतना जल्दी आप इन्हें कंट्रोल कर पाओगे. सो ट्राई अंडरस्टैंडिंग इट वेरी डीपली. आई नो ये बहुत ही एक जनरल बात लग रही होंगी क्योंकि ये इमोशंस हैं जो हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं. तो लेकिन इन इमोशंस को इस चीज़ से समझने की कोशिश करो कि आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहे होंगे ट्रेडिंग करते में, जिससे आपको उस सवाल समझ के समझ आ जाए कि ये इमोशन मेरा ट्रिगर कर रहा है एंड आई हैव टू कंट्रोल माई राइट. तो इन सारे सिचुएशंस को, इन सारे सिनेरियोज को उस तरीके से समझने की कोशिश करो एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू ऑल ऑफ यू. So moving on to the next, FOMO. Someone in the chat box asked me about FOMO, so kindly pay attention. I am going to explain you the whole process. So FOMO is fear of missing out. ये एक बहुत ही नया टर्म है. It's kind of a slang basically. FOMO का मतलब होता है it is a social anxiety that initiates from the thought that others are benefiting from an opportunity that you are missing out on. मतलब कोई एक ऐसी सिचुएशन, सोशली मोस्टली ये सोशल सेटअप्स होते हैं, कोई ऐसा सोशल सेटअप जिसके अंदर आपको ये डर लग रहा है कि बाकी सब उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं नहीं उठा पा रहा और मैं उस चीज़ को मिस कर रहा हूँ, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट वी कॉल एज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. कुछ छूट जाने का डर लग रहा है हमें, राइट. सो अब सिनेरियो डिस्कस करते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा कि एक ट्रेडर की लाइफ में ये कैसे होता है. So the trader feel the urge to get into, or it can be out, of a trade if they see other experts doing it, or listening to the news, or following the social trends. This can actually lead you to losses. आपने कई बार, if anyone has dealt in crypto market, आपने देखा होगा, even in forex market, there are a lot of times जब लोग किसी और expert ने कुछ कहा कि अब ये हो जाएगा, अब ये कर लेना चाहिए, एंड यू टेक दैट पोजीशन. या आपने सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग देखा कि गोल्ड ऊपर जाने वाला है एंड यू जस्ट बॉट द लॉन्ग पोजीशन विदाउट लुकिंग एट द टेक्निकल्स और विदाउट लुकिंग एट द चार्ट. इवन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू दैट एज वेल, कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे किसी ने कमेंट किया और उस कमेंट को देख के आपने वो ट्रेड ले लिया. So this is something that these are the trades that you actually do from the emotion that is FOMO, क्योंकि आपको डर लग रहा है आपकी वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी. बट एक्चुअली ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. तो आपकी अगर एक अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाती है, आपको वो एक्सेप्ट करना है कि दैट्स ओके, अभी फ्यूचर में और अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इमोशन, दैट्स ईगो. ईगो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमोशन है और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी ट्रेडिंग पे. ईगो इज़ बीइंग राइट. सो ह्यूमन लाइफ के अंदर बीइंग राइट और रॉन्ग इज़ द थिंग दैट टेंड्स टू इम्पैक्ट आवर ईगो द मोस्ट. बट इन ट्रेडिंग दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग. आपका सही गलत होना इम्पोर्टेंट यहाँ नहीं है.
प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स आर नॉट इमोशनली इन्वेस्टेड इन बीइंग करेक्ट. They are emotionally invested in optimizing their strategy and gaining most profits and losing the least losses that are possible. So professional traders जो होते हैं उन्हें ये नहीं होता कि हमें हर जगह सही होना है. Like there are a lot of professional traders who are working with a winning ratio of only 30%, but they are profitable. That's important, right? तो आप इमेजिन करो 10 ट्रेड में से उनके 7 ट्रेड गलत होते हैं, सिर्फ 3 ट्रेड सही होते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिटेबल है. बिकॉज इफ यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई है. दे आर टेकिंग ट्रेड्स ऑफ 1:20. तो 1:20 के ट्रेड में उनके हर ट्रेड के अंदर सिर्फ एक जाता है, लेकिन जब सही होता है तो 20 आ रहा होता है. सो इन सिचुएशंस के अंदर इफ दे थिंक अबाउट देयर ईगो दैट मुझे हमेशा सही होना है, तो उनसे तो ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएंगे वो. So it's very important for you to understand is like to actually make the plan, make the setup. जब आप सेटअप बना रहे हो आपको इस चीज़ का कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है. मैं कितना टाइम सही होता हूँ. वंस यू डिसाइडेड द विनिंग रेशियो, आपके उन नेगेटिव रेशियो का आपको एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है. आपको हर बार सही होना ज़रूरी नहीं है टिल द टाइम यू आर प्रॉफिटेबल. अब आप 1:1 की या नेगेटिव आरआर की स्ट्रैटेजी के ऊपर सोचो कि मैं 50% सही हूँगा तब भी चलेगा, सो दैट्स नॉट समथिंग दैट्स ट्रू. आपको कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली कि आपका विनिंग रेशियो कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपका आरआर कितना होना चाहिए, या आपका आरआर कितना है उसके अकॉर्डिंगली आपका विनिंग रेशियो कितना निकलना चाहिए. ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से, उस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आपके अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना है कि अगर मेरा 50% सही होता है तो 10 में से 5 ऐसे ट्रेड होंगे. देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि उन 10 में से पहले 5 ही ऐसे ट्रेड हो जिनमें लॉस हो जाए और बाकी के 5 ऐसे हो जिनमें प्रॉफिट हो जाए. ये भी तो हो सकता है. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन द मार्केट. तभी आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना ज़रूरी है, ताकि उसके अंदर आपको स्टैटिस्टिकली दिखता रहे कि कितनी बार आप सही हो रहे हो, कितनी बार गलत हो रहे हो. अगर आपका विनिंग रेशियो हिल रहा है तो आपको पता चल जाएगा आपका विनिंग रेशियो चेंज हो रहा है, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ईगो के इमोशन को, आपको हमेशा सही होना ज़रूरी नहीं है. मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मार्केट अपने हिसाब से चलती है. हम सिर्फ एक तरीका ढूंढ रहे हैं उसे कैच करने का. हम हर बार सही हों ये नहीं होगा. जस्ट एक्सेप्ट इट एंड देन स्टार्ट बीइंग अ ट्रेडर, बिकॉज ये एक्सेप्टेंस आप जितनी जल्दी लाओगे आप उतना अपना कैपिटल सिक्योर कर पाओगे. एवरीवन गॉट दैट कंसेप्ट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. और आपको इस स्टेज पर जब आप इसे बेसिक लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, आप 100% सही नहीं होगे. देयर आर गोइंग टू बी टाइम्स जब आप गलत होगे. So accept this thing and then move forward. But इस acceptance के साथ it's very important to calculate your RR and your winning ratio and decide exactly वो setup profitable है या नहीं है. ये चीज़ आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है. And once you have decided that, just stick to it and accept it. These are the major emotions that affect a forex trader. I have left out a few emotions that might not affect a forex trader, but if you want you can check out the YouTube videos for that. बट अब आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे. उससे पहले मैं पूछना चाहूँगी, सबको सारे इमोशंस समझ आ गए? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज आई सेड टू एक्चुअली रिकग्नाइज दीज इमोशंस. ट्रेडिंग के अंदर ये इमोशंस कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इफेक्ट कर पाते हैं, क्या डिसीजन लेने में तंग कर सकते हैं. ये चीज़ें जितना जल्दी आप रिकग्नाइज करोगे उतनी जल्दी आप रेक्टिफाई भी कर लोगे. बिकॉज आवर ब्रेन इज़ वेल इक्विप्ड. कितने लोगों को एक्चुअली एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती. द मोमेंट दे रिकग्नाइज देयर प्रॉब्लम दे आर एबल टू सॉल्व इट. देर आर अ फ्यू पीपल जिन्हें एक्सटर्नल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ जाती है, बिकॉज देयर इमोशंस आर अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम टू अंडरस्टैंड. बट मोस्टली लोग इसे खुद रिकग्नाइज करके सॉल्व कर लेते हैं. तो कोशिश करो जितने इमोशंस को अपनी ट्रेडिंग में रिकग्नाइज कर पाओ. नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इन इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है. इनकी वजह से हमारा जो ट्रेडिंग डिसीजन पे इफेक्ट आ रहा है उसे कैसे कंट्रोल करना है. सो आई एम सजेस्टिंग अ फ्यू थिंग्स. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एटीट्यूड टूवर्ड्स योर ट्रेडिंग प्लान. बिफोर गेटिंग इन टू ट्रेडिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है. प्रोफेशन में हमेशा एक प्लान होता है. आपको सबसे पहले उस प्लान को बनाना है. सर ने जैसे आपको 3 स्टेप्स बताए हैं ट्रेडिंग के, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लान.
उस प्लान को ऑल इलेबोरेटिवली हर स्टेज हर स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, कैसे करोगे, कौन सी सिचुएशन आएगी तो क्या करोगे, ये चीज़ आपको मेंशन करनी है. So first learn and create a proper trading plan and note it down step wise. सर ने बहुत आपको step wise ही चीज़ें सिखाई हैं, but try to formulate your own trading plan कि मेरा प्लान ये है, मैं इस बेसिस पे सेटअप करूँगा, मैं इस बेस पे एंट्री लूँगा, मैं इस बेस पे एग्जिट रखूँगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री, ये तीनों चीज़ें ट्रेड करने से पहले पता होनी चाहिए और आपकी वो पहले ही डिफाइन होनी चाहिए, एंड दैट टू बेस्ड ऑन दीज ट्रेडिंग प्लान रूल्स. सेकेंड स्टेप इज टू डू इनफ बैक टेस्टिंग फॉर दैट ट्रेडिंग प्लान. पहले आप ट्रेडिंग प्लान बनाओगे, फिर उन स्टेप के बेसिस पे आप बैक टेस्टिंग करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग आप करोगे उस ट्रेडिंग प्लान पे, पहली चीज़ आपको कई चीज़ें पता चलेंगी कि मिसिंग है. जब आप लाइव मार्केट में वो बैक टेस्ट कर रहे होगे, कई चीज़ें आपको पता चलेंगी कि ये भी एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट आता है और इसमें मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए. तो आप वो चीज़ें ट्रेडिंग प्लान में जाके मेंशन कर सकते हो. इससे बैक टेस्टिंग से पहली चीज़ आपका ट्रेडिंग प्लान और डिफाइन हो जाएगा, एंड सेकेंडली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उस प्लान के अंदर. बिकॉज जितने ज़्यादा आप ट्रेड्स लेते जाओगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे कि ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, ये एक प्रॉफिटेबल सेटअप. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट इन द लाइव मार्केट, जहाँ पर आपके इमोशंस आपको ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज उसमें रियल मनी इन्वॉल्व है. ज़रा सा लॉस भी आपको बहुत तंग कर सकता है और आपके नेक्स्ट ट्रेड पे इफेक्ट डाल सकता है. तो इंस्टेड ऑफ गेनिंग द कॉन्फिडेंस इन लाइव मार्केट, आप बैक टेस्टिंग करते में वो कॉन्फिडेंस गेन करो, बैक टेस्टिंग करते में अपने ट्रेडिंग प्लान को फुल प्रूफ करो, बिकॉज वहाँ आपके सबसे कम इमोशंस हैं, क्योंकि उसके अंदर आपके पैसे इन्वॉल्व नहीं है. सेकेंडली, परफॉर्म अ मेंटल चेकलिस्ट बिफोर ट्रेडिंग. अपने दिमाग में या पेपर पे या गूगल शीट पे किसी भी जगह पर वो एक चेकलिस्ट बनाओ कि आपको ट्रेड करते हुए क्या क्या करना है. उस चेकलिस्ट को जब तक चेक ना करो तब तक आप ट्रेड एंटर मत करो. सो दिस इज द मेजर एटीट्यूड दैट शुड बी टूवर्ड्स द ट्रेडिंग प्लान. ट्रेडिंग प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर आपका यही एटीट्यूड होना चाहिए कि आपको पहली चीज़ वो प्रॉपरली जॉटेड डाउन होना चाहिए, दूसरा वो बैक टेस्टेड होना चाहिए, आपके दिमाग में एक मेंटल चेकलिस्ट बनी होनी चाहिए, आपका उस प्लान पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये वर्क करता है क्योंकि आप बैक टेस्ट कर चुके हो. Everyone understood this concept. It's a very important thing to do, and आपको ये मतलब as a trader, every trader has to do it. So now let's move to the other part, that is attitude while trading. ट्रेडिंग करते में आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए? फर्स्ट दैट आई रिकमेंड टू एवरीवन एवरीवेयर, दैट इज टू मेक अ ट्रेडिंग जर्नल. हमें लगता है नोट करने से क्या होगा, लेकिन नोट करने से बहुत कुछ होता है. ट्रस्ट मी, आई कैन गिव यू अ 3 hour स्पीच ऑन दिस थिंग कि ट्रेडिंग जर्नल इंपॉर्टेंट क्यों है. इसलिए फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मेक अ ट्रेडिंग जर्नल एंड नोट डाउन ऑल योर ट्रेड्स वाइल मेंशनिंग योर ट्रेडिंग प्लान रूल्स. कि रूल ये था, मुझे ये चीज़ दिखी और इस वजह से मैंने ये चीज़ करी. ये चीज़ आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है और आपके ये जर्नल में मेंशन होना चाहिए, ताकि अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्लान मिस आउट किया, कोई लूप होल आया, किसी वजह से आपने गलती करी, तो आपको समझ तभी आएगा जब आप उस चीज़ को कहीं मेंशन करोगे, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा. सेकेंडली, ऑलवेज बिलीव इन योर ट्रेडिंग प्लान एंड इन वट एवर पोजिशन यू आर इन द मार्केट, ऑलवेज स्टिक टू द प्लान एंड डोंट लेट द इमोशंस चेंज योर पोजिशन. बहुत बार ट्रेडर्स ये करते हैं कि एक बार जब पोजीशन ऑन हो जाती है, उसके बाद जो कैंडल्स बन रही होती हैं उन्हें इतना ज़्यादा इफेक्ट करती हैं कि उन्हें अपने प्लान पे डाउट हो जाता है. आपने लॉन्ग पोजीशन ली, वो 20 पॉइंट्स ऊपर चला गया, लेकिन उसके बाद रेड कैंडल्स बन रही हैं, तो आपको डर लगता है एंड यू फील दैट ये उल्टा चला जाएगा शायद, सो यू जस्ट स्टॉप दैट ट्रेड देयर इटसेल्फ. लेकिन ये कैसे हुआ? बिकॉज आपका वो फियर इमोशन था कि मेरा जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है वो भी मिस हो जाएगा. उस फियर इमोशन की वजह से आप अपनी पोजीशन वहीं बंद कर देते. लेकिन एक्चुअली आपका ट्रेडिंग प्लान पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर ट्रेड ले लिया, टेक्निकल्स कह रहे हैं, आपका ट्रेडिंग प्लान कह रहा है कि ये ट्रेड लेना है, तो वो ट्रेड आपको लेना ही है. इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आपका स्टॉप लॉस टच कर जाए, बट आपका विनिंग रेशियो स्टॉप लॉस को कंसिडरेट कर रहा है, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो. तो इसलिए एक्सेप्ट दिस थिंग कि आपका ट्रेडिंग प्लान काम करता है. एक बार आपने बैक टेस्टिंग कर ली, आपको पता चल गया वो काम करता है, आपने विनिंग रेशियो RR अपना डिफाइन कर लिया, उसके बाद यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट
कि मार्केट में ये चल रहा है या नहीं चल रहा. यू जस्ट हैव टू कीप टेकिंग द ट्रेड्स बेस्ड ऑन दैट ट्रेडिंग प्लान एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि ये चीज़ मार्केट में चलेगी ही चलेगी. यू हैव टू बिलीव इन इट एंड आई एम नॉट डिनाइंग देयर आर टाइम्स जब वो चीज़ चलना बंद भी कर सकती है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट. उसी के लिए हमें ट्रेडिंग जर्नल बनाना ज़रूरी है बिकॉज ट्रेडिंग जर्नल हमारी हर चीज़ कैलकुलेट कर रहा है. अगर हमारा विनिंग रेशियो कम हो रहा है तो आपका जर्नल आपको बता देगा कि आपका विनिंग रेशियो कम हो रहा है एंड देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन. या तो आपके ट्रेडिंग प्लान में कुछ मिसिंग है या मार्केट में कुछ शिफ्ट है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन. लेकिन वो जर्नल ही आपको वो चीज़ों से बचा सकता है. बट इन द ऑल द अदर पॉइंट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन योर ट्रेडिंग प्लान. थर्ड, ऑलवेज रिमेंबर यू कैन चेंज योर एग्जिस्टिंग ट्रेड ओनली बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड एनालिसिस विच यू हैव मेंशन्ड इन योर ट्रेडिंग जर्नल. ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एग्जिस्टिंग ट्रेड आपको चेंज करना हो, लेकिन वो चेंज सिर्फ लॉजिक और आपके टेक्निकल एनालिसिस की वजह से होना चाहिए. वो चेंज कभी भी आपकी किसी थॉट प्रोसेस, किसी इमोशन, किसी माइंडसेट की वजह से नहीं होना चाहिए. या कई बार होता है कि लोगों ने कुछ सुना होता है ट्रेडिंग करने से जस्ट पहले आपने कोई न्यूज़ देखी और उसमें पोजीशन न्यूज़ में आ रहा था कि लॉन्ग करनी है पोजीशन और आपका सेटअप कह रहा था शॉर्ट करना है और आपने शॉर्ट कर भी दिया लेकिन आपको डर लग रहा है और आप एकदम से उसे ट्रेड को कम कर देते हो. दिस इज समथिंग दैट यू डोंट हैव टू डू. आप उस ट्रेड को, अगर आपने वो ट्रेड ले लिया अपने प्लान के बेसिस पे, तो आप उस ट्रेड को चेंज सिर्फ टेक्निकल रीजंस की वजह से करोगे. इसके अलावा आप उस ट्रेड को कभी बंद नहीं करोगे बिकॉज योर सेटअप ऑलरेडी हैज़ द मार्जिन टू हैव दो स्टॉप लॉसेस. तो वो स्टॉप लॉस टच भी हो जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आप बिना लॉजिक के उस ट्रेड को चेंज कर दोगे तो आपके मेंटल स्टेट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा एंड दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ अदर ट्रेड्स दैट यू आर गोइंग टू टेक द वेरी सेम डे. हम डे ट्रेडर्स हैं. हमारी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा एक ट्रेड, हमारा डे का फर्स्ट ट्रेड कैन एक्चुअली, उसमें हमने कोई गलती करी, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इन सब चीज़ों का इफेक्ट हमारे बाकी के पूरे दिन के ट्रेड्स पे पड़ता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर ट्रेड सिर्फ लॉजिक बेस्ड होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए. एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड व्हाट योर एटीट्यूड शुड बी व्हाइल ट्रेडिंग. फर्स्ट वी डिस्कस्ड कि ट्रेडिंग से पहले क्या एटीट्यूड होना चाहिए. देन वी डिस्कस्ड ट्रेडिंग के टाइम क्या एटीट्यूड होना चाहिए. Moving on to the next, these are a few other remedies that I would recommend you from my point of view. Like I have given, I have been so I am a trading counselor to a lot of traders. So with my personal experience with my clients, these are a few remedies that I would recommend you because these are something that works for everyone. Like if I discuss about my sessions are very personal and very centric to their personality as such. But these remedies are something that apply to everyone. So the first is focus on the process goals rather than the profits and the losses. ये बोलने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन ये करना बहुत मुश्किल होता है एक ट्रेडर के लिए. हर ट्रेड को, ट्रेडिंग करियर को सिर्फ प्रॉफिट्स और लॉसेस की तरह मत देखो, उसे एक प्रोसेस की तरह समझो. It is a process. It will have its own losses. It will have its own profits. It will teach you a lot of things. It is going to change you as a person as well. It is going to change your lifestyle as well. There are a lot of changes that it is going to make. So ये एक process है. ये सिर्फ profits बनाने का तरीका नहीं है. It is अ प्रोसेस. आपका ट्रेडिंग प्लान बनना ज़रूरी है, आपको बैक टेस्ट करना ज़रूरी है, आपको डेमो ट्रेडिंग करना इतना ज़रूरी है. ये सब एक प्रोसेस है. आप जब तक इसे प्रोसेस की तरह नहीं समझोगे आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. जब तक आप पैसे के पीछे भागते रहोगे इंस्टेड ऑफ इस प्रोफेशन के पीछे, तब तक आपको लॉसेस होने के चांसेस हैं. बिकॉज जितना आप प्रॉफिट्स के पीछे भागोगे उतना ये इमोशंस आपको प्रॉफिट से और दूर खींचेंगे. बिकॉज प्रॉफिट के पीछे भागते हुए आप कई बार ग्रीडी होके अपने टारगेट को मीट नहीं होने दोगे, या आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और अपने स्टॉप लॉसेस को और ड्रैग डाउन कर दोगे, या फियर की वजह से आप कभी विनिंग ट्रेड को वहीं के वहीं ख़त्म कर दोगे बट एक्चुअली वो ट्रेड आपको बहुत प्रॉफिट दे जाता है लेकिन आप उसको उतने में ही ख़त्म कर दोगे. सो प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो आप बहुत गलतियां करोगे. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि इसे प्रोसेस की तरह समझो और इसे प्लान बनाओ, उस पर बैक टेस्टिंग करो, उस पर कॉन्फिडेंस लो, इसे एक प्रोसेस बनाओ इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस. सेकेंडली, ऑलवेज इंक्रीज द रिस्क इंक्रीमेंटली एंड नॉट सडनली.
लाइक यू आर डूइंग फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो जब भी आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हो 0.01 लॉट से स्टार्ट करो एंड ग्रेजुअली 0.01 लॉट से अगर आप अच्छा खासा रिटर्न निकाल पा रहे हो, डिफाइन इट योर सेल्फ, आई एम नॉट डिफाइनिंग इट फॉर यू, आप खुद डिफाइन करो कि कितना प्रॉफिट आपको लगता है कि इज़ अ गुड प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेटअप। उतना प्रॉफिट अगर आप 0.01 से निकाल पा रहे हो, देन मूव ऑन टू 0.02 और 0.05। ऐसा कभी मत करना एक्चुअली कि 0.01 पे आपको अच्छे ट्रेड 10 ट्रेड लिए, 0.01 पे 8 सही हो गए तो 11वां ट्रेड आपने सीधा 1 लॉट पे ले लिया। ये चीज़ मत करना, हमेशा अपना रिस्क धीरे धीरे इंक्रीमेंट करो, बिकॉज हमारा मेंटल स्टेट जो है उसे उसी तरह एडजस्ट कर पाता है। जितना इंक्रीमेंटली आप उसे एडजस्ट करोगे उतना आपके इमोशंस साइमल्टेनियसली एडजस्ट होते रहेंगे। अगर आपको 0.01 लॉट से स्टार्ट कर रहे हो, आपको सेंट्स के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, जैसे ही आप 1 लॉट करोगे आपको प्रॉफिट तो बहुत बड़ा होगा लेकिन आपको लॉस भी तो उतना ही बड़ा होगा, और उस लॉस को एक्सेप्ट करने का आपके दिमाग में अभी सेटअप नहीं बना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रिस्क हमेशा धीरे धीरे बढ़ाओ। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, 0.05 पे कॉन्फिडेंस आया है तो सीधा 0.1 पे चले जाओ, लेकिन सीधा 1 पे मत जाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 0.1 के बाद भी 0.5 पे जाओ, इंक्रीमेंट स्लोली करो, एकदम से इंक्रीज मत करना, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ आवर ब्रेन इज एबल टू फंक्शन। ये धीरे धीरे काम करता है, इसे धीरे धीरे ही चीज़ें सिखाओ, एंड इट्स वेरी गुड फॉर टू एक्चुअली सिक्योर और कैपिटल एज वेल। आप अपने कैपिटल को ब्लो अप करने से बचा लोगे अगर आप उस रिस्क को इंक्रीमेंटली ही लोगे। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आप लोगों ने ट्रेडिंग जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट करी है तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आनी है, जस्ट पेशेंटली वेट फॉर द राइट वंस। धीरे धीरे इंक्रीज करो, यू विल गो लॉन्ग वे। यहाँ पर एग्जैक्टली वो रैबिट और टोर्टॉइस वाली स्टोरी है। टोर्टॉइस की तरह धीरे धीरे चलोगे तो पक्का रेस जीतोगे, अगर रैबिट की तरह कूद के भाग के प्रॉफिट्स के पीछे भागोगे तो कभी रेस नहीं जीत पाओगे। Okay, the third thing is use mental rehearsal to make threatening situations familiar. This is something that we as psychologists prefer doing. That is, हम mentally rehearse करते हैं कि अगर ये situation मेरी लाइफ में आई तो मैं इसे कैसे डील करूँगा। अगर आप अपने मेंटली रिहर्स उस चीज़ को कर लेते हैं कि अगर मुझे ट्रेडिंग करते में फियर इमोशन आ रहा है और मुझे डर लग रहा होगा तो मैं अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ही चलूँगा, मैं उस इमोशन की वजह से कोई ट्रेड नहीं करूँगा। ये आप पहले ही रिहर्स करो कि आपको डर लग रहा है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको डर लग रहा है और आपने उस प्लान को एक्सेप्ट किया और उस प्लान के हिसाब से ही किया। जब आप इस चीज़ को रिहर्स कर लोगे तो होता क्या है, हमारे मेंटल दिमाग में एक इमेज बन जाती है इस रिहर्सल की। आपको पता होगा हमारा दिमाग हर चीज़ स्टोर करता है एक एपिसोड्स में, तो ये एक एपिसोड बन जाता है। अगर आपने वो मेंटली रिहर्स कर लिया, वो एक एपिसोड आपके दिमाग में बन जाएगा, एंड उस एपिसोड की वजह से जब भी लाइफ में फिर से वो सिमिलर सिचुएशन आएगी तो मेंटली आपका दिमाग उस एपिसोड को रिप्ले करने की कोशिश करेगा, बिकॉज उस एपिसोड में आपको प्रॉफिट हुआ था, आप प्रॉफिटेबल थे या आपने अपना लॉस बचाया था, तो वो एक पॉजिटिव रिटर्न आया था आपको सिचुएशन से, उस पर्टिकुलर एपिसोड से। तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वो चीज़ अपनी रियल लाइफ में करता है, और उसकी वजह से इवन इफ़ यू आर नॉट इन योर कॉन्शियस सेंसेस, आप फिर भी आपका मेंटल स्टेट आपको वो चीज़ करने पे मजबूर कर देता है, एंड यू गेट आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। गॉट इट? येस, इट इज़ जस्ट लाइक विजुअलाइजेशन। यू हैव टू विजुअलाइज इट कि एग्जैक्टली ये मेरी सिचुएशन है और एग्जैक्टली मुझे ऐसा होगा और मैं इसमें ऐसा करूँगा। आपको सब कुछ विजुअलाइज करना है ताकि वो एक एपिसोड बन जाए आपके दिमाग, एंड इफ़ यू एक्सेप्ट इट, आप मानोगे या नहीं मानोगे, बट वो एपिसोड एक्चुअली आपको हर बार जब भी सिमिलर सिचुएशन आएगी वो रिहर्स होगा ही होगा। So this is one of a very basic psychological tool that we use in our counseling sessions, जिसके अंदर हम actually clients को ये rehearse कराते हैं the situations that are actually affecting their trading. So आप अपने analysis भी कर सकते हो कि आपको कौन से emotions affect कर रहे हैं, और आप उन चीज़ों को rehearse करके जो सही चीज़ है वही rehearse करना, और वो आपके अपने आप रियल लाइफ में होना शुरू हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज स्टेप अवे फ्रॉम द स्क्रीन एंड रीफोकस ऑन व्हाट द मार्केट इज शोइंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम बहुत देर तक एक पर्टिकुलर चार्ट को देखने लग जाते हैं तो हमें वो एक ही पर्सपेक्टिव से दिख रहा होता है, हम उसमें कुछ नया नहीं देख पाते।
राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डीप डाउन चले गए हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कंफ्यूजिंग हो रहा है, मार्केट को देख के ये भी लग रहा है ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, आप जब इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उस टाइम स्क्रीन से दूर जाओ, उठकर किसी और सीट पे बैठ जाओ, कहीं कॉफ़ी लेने चले जाओ, एनीथिंग दैट यू फाइंड रिक्रिएशनल, वो चीज़ करो एंड देन गेट बैक टू द स्क्रीन एंड देन लुक एट द मार्केट. वो आपको एक नए पर्सपेक्टिव से आप देख पाओगे, इंस्टेड ऑफ द सेम पर्सपेक्टिव दैट यू हैव बीन यूजिंग फॉर दैट पर्टिकुलर चार्ट. ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, स्पेशली इन द कन्फ्यूजिंग सिचुएशन, जब आपको नहीं समझ आ रहा या आपसे पेशेंटली वेट नहीं हो रहा कुछ करने का, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस स्क्रीन बंद करनी है, आप कर सकते हैं. आपको बस उस जगह से, जिस जगह पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, उस जगह से उठ के कहीं और जाना है, और 2 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, एवरीवन हैज़ देयर ओन टाइम ऑफ रिक्रिएशन. कॉफ़ी पियो, वॉक करो, किसी से मिल लो, किसी से बात कर लो, एंड देन कम बैक, रिफ्रेश योर माइंड समवेयर, देन कम बैक टू द स्क्रीन एंड लुक एट द चार्ट्स. आप खुद डिफरेंस देखोगे कि आप उन चार्ट्स को आप बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दोगे. द लास्ट इज गेट अ लाइफ अदर देन ट्रेनिंग टू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस. सिर्फ ट्रेडिंग मत करो, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन योर लाइफ, बिकॉज वो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस लाएगी अपने ट्रेडिंग के अंदर ही. अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करते रहोगे, यू विल बी टू इंडल्ज्ड इनटू इट, एंड ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपके इमोशंस उस चीज़ को और इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने रूल्स बनाओ कि इतना घंटा मुझे बैक टेस्टिंग में देना है, इतने घंटे मुझे ट्रेडिंग में देने हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम, no doubt you have to do a lot of homework, you have to do a lot of back testing, but do something recreational other than this as well, otherwise trading will actually become boring for you. So उस confidence को बनाए रखने के लिए, उसमें से profit बनाए रखने के लिए, it's very important for you to understand कि आपकी लाइफ में कुछ recreational simultaneously होता रहना चाहिए. सिर्फ trading ही मत करो, do a lot of other things as well, ताकि ट्रेडिंग पे उतना बर्डन ना पड़े. हर चीज़ का बर्डन ट्रेडिंग पे मत डालो, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर ट्रेड्स. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर रेमेडीज दैट आई हैव फाउंड आउट फ्रॉम माई पर्सनल पर्सपेक्टिव विथ माई क्लाइंट्स, and these are something that, trust me, if you work with them judicially, आप बहुत आसानी से ट्रेडिंग को के अंदर से अपने इमोशंस को बाहर निकाल पाओगे. सबसे पहले उन्हें रिकग्नाइज करो, उस पैटर्न को समझने की कोशिश करो कि जब मार्केट में ऐसा होता है तो मैं ये करता हूँ. फिर उसे मेंटली रिहर्स करो कि एक्चुअली आपको वो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एंड फिर आप खुद ऑटोमेटिकली देखोगे रियल लाइफ में आप एक्चुअली वही चीज़ कर रहे हो. एंड ट्रेडिंग जर्नल बनाओ ताकि हर चीज़ स्टैटिस्टिकली आपको समझ आ रही है. प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, हर चीज़ पहले डेमो पे ट्राई करो, और धीरे धीरे अपना रिस्क बढ़ाओ. एकदम से कोई रिस्क बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. मार्केट में बहुत टाइम आएगा, बहुत प्रॉफिट कमा पाओगे, आपको एकदम से रिस्क बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. या इट्स अ मेंटल फॉग. योर इमोशंस एक्चुअली क्रिएट अ मेंटल फॉग इन योर ब्रेन. सो उस मेंटल फॉग से बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉलो ऑल द रिकमेंडेशंस दैट आई हैव गिवन टू यू, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स. आई विल बी शेयरिंग अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस मोर ऑन यूट्यूब एज वेल. You have already followed the channel, stay tuned to it. I'll be adding a lot more videos to that particular channel as well. So with this we come to the end of this session. I hope you liked this session. If anyone has any questions, I am here for next 5 minutes. I would like to wish you all the best, and may you have a great trading journey. And if you have any issues or anything, you can always ping us on our WhatsApp number. For anything that's technical, sir will always be there, and for anything that's psychological, I'll always be there for you guys. Thank you everyone. Thank you so much. Yes, Sagars, it's our way of giving back to the society, because me and Parasur, both of us have gone through this journey of what you have actually started, and the one thing that we always wanted was to actually have the mentors who can hold our hand and guide us in the right path. Because trading एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इतनी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं मार्केट में कि आपको सब सही लग रही होती है लेकिन कुछ सही नहीं होती.
तो हमें हमेशा ये फील होता था कि एक मेंटर होना चाहिए जो हमें शुरू में उस सही रास्ते पे ले जाए, बाकी हम देख लेंगे. सो दैट इज समथिंग दैट वी फेल्ट द मिसिंग पार्ट इन आवर जर्नी, एंड वी डिसाइडेड दैट टाइम कि कोई और हमें नहीं मिला तो हम लोगों को ज़रूर इस चीज़ के लिए हम उस चीज़ को फ्री में रखेंगे, हम लोगों को फ्री में ये चीज़ समझाएंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और एक छोटा सा मेंटर आपको कितना प्रॉफिट करा सकता है आप सोच भी नहीं सकते हो. उसकी एक छोटी सी बात आप पे कितना इफेक्ट डाल सकती है. सो दिस इज व्हाई वी एक्चुअली स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव. That's great, Karthik. The more you start practicing these habits and techniques, you will see the difference in your trading itself. Thank you, everyone. Thanks for all of your kind words. Best of luck to all of you.